topic modulus and argument of complex numbers. Topic of this video is modulus and argument of complex numbers. We have already discussed that complex number is represented by a plus iota b in standard form. This is standard notation of a complex number. Here real part of complex number z is a and imaginary part of this complex number z is b. These two are real and imaginary parts. In imaginary part, when I write I am z, we will not write iota with this. Iota नहीं लिखा जाता, सिर्फ इसमें b लिखा जाता है. तो real part is a, imaginary part is b. We have also done modulus of complex number by this formula, square root of a square plus b square. This modulus of z is also represented by letter r. We will also represent it by letter r. Let's have a look of this on graphical system on complex plane. जैसे हम normally x और y axis को हम draw करते हैं, almost same way we will draw this complex plane. इसे हम complex plane कहेंगे. This is not said to be an x axis. इसे कहा जाएगा real axis और जो y axis है इसे हम कहेंगे imaginary axis. Normally जो हम x और y axis draw करते हैं तो हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, लेकिन यह कार्टेशियन प्लेन ना बोलकर इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन. दिस इज कॉम्प्लेक्स प्लेन. This complex plane is also named as argand plane. अब ये जो plane है, in this plane, in this complex plane, this x-axis is named as real axis. ये real axis है, means ये x को represent करेगा, real part x है, और जो ये axis है, this is imaginary axis जो y को represent करता है. So imaginary axis is representing y. ये y को represent करेगा और ये x को represent करता है. तो suppose a and b are two coordinates. मैं इनको यहां लोकेट कर देता हूं. Means this length is a. origin से point a तक आते हैं. This is length a और height b तक जाते हैं. If this length is b, then in complex plane this coordinate will be represented here z as a plus iota b. तो ये जैसे कार्टेशियन प्लेन में हम सिस्टम x और y को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया गया है. अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए अगर मैं इसको एक ट्राइंगल से देखता हूं, मीन्स इफ आई जॉइन दिस विद ओरिजिन, एक राइट एंगल बन गया है. इन दिस राइट एंगल ओ ए एंड बी, डिस्टेंस ओ टू जेड, ये जो ओ से लेकर जेड तक की डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज आर और मॉड्यूलस. जो हम मॉड्यूलस फाइंड कर रहे हैं, दिस मॉड्यूलस इज डिस्टेंस विच इज रिप्रेजेंटेड बाय आर. और आप यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से भी देख सकते हैं, बिकॉज दिस एंगल इज राइट एंगल 90 डिग्री. इफ वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो वी कैन से आर स्क्वायर और मॉड जेड स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो ये फॉर्मूला यहां से आता है. ये तो हुआ मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. अब आर्गुमेंट की बात करते हैं. कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं भी हो सकता है. इट मे बी ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट मे बी हियर ऑन सेकंड क्वाड्रेंट, इट मे बी हियर ऑन थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट. वेरेवर इट इज, इट विल मेक एन एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. यहां एक एंगल जरूर बनेगा. ये जो एंगल बन रहा है यहां पर, इफ यू कॉल इट थीटा, दिस एंगल इज कॉल्ड आर्गुमेंट.
ये जो थीटा है, दिस थीटा इज आर्गुमेंट। अब ये आर्गुमेंट ऑफ z है, वी राइट इन शॉर्ट इट एज ARGZ। ARGZ से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब है आर्गुमेंट ऑफ z। ये आर्गुमेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर का z का। सो दिस इज आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। अब क्वेश्चंस इसको लेकर आ सकते हैं, how to find this theta and how to find this r. If we are given a complex number z a equals to iota b, we can easily find modulus of z. Modulus of z हम आराम से find कर सकते हैं। But how to find this theta, how to find this argument, इसके लिए हम थोड़ा सा trigonometry का concept use करेंगे। Let's see in this right angled triangle. इस right angled triangle में ही हम अगर फिर से देखें, then we are getting that perpendicular is B, base is A and this hypotenuse is R। तो अगर sin थीटा की बात की जाए in this triangle, sin थीटा perpendicular by hypotenuse होता है, that is B upon R। Similarly cos थीटा की बात की जाए, then cos थीटा in this triangle is perpendicular base by hypotenuse means A by R। So from first equation we are getting B is equals to R sin theta. From second we are getting A equals to R cos theta. We can say here A is R cos theta and B is R sin theta। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है A is x coordinate and B is y coordinate। So if we represent these two in polar form, जो एक z था polar form वैसे सिलेबस से डिलीट हो गया है, लेकिन मॉडुलस और आर्गुमेंट समझना बहुत जरूरी है। जैसे ये a प्लस आयोटा b एक नॉर्मल कॉम्प्लेक्स प्लेन को शो किया गया, कॉम्प्लेक्स नंबर को शो किया गया है। इफ आई रिप्लेस दिस a बाय r cos theta, b by r sin theta, so this form becomes r cos theta plus iota r sin theta। तो ये r cos theta और ये r sin theta, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रियल पार्ट को। r sin theta किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इमेजिनरी पार्ट को। अब r cos theta और r sin theta, इसकी हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं थीटा। एंड व्हाट इज थीटा? थीटा इज डिफाइंड आर्गुमेंट ऑफ z। तो इस टॉपिक में हम मॉडुलस और आर्गुमेंट सीखेंगे। मॉडुलस वी हैव ऑलरेडी लर्नड। मॉडुलस है क्या? रूट ऑफ a स्क्वायर बाय b स्क्वायर विच इज ऑल्सो डिनोटेड बाय r। नाउ लेट्स कम टू थीटा, हाउ टू फाइंड दिस थीटा एंगल और आर्गुमेंट ऑफ z। सो इसके लिए हमें ये बेसिक कंसेप्ट यूज करना होगा। वी विल अप्लाई दिस कंसेप्ट टू फाइंड argument which is called theta. Now before going for this theta, let's have a look or idea of argument. What is principal branch of argument? ये जो हम argument कह रहे हैं थीटा को, this argument as a principal branch and we call it principal argument. So its a principal branch is, इसकी जो principal branch है वो है माइनस पाई से लेकर पाई तक। माइनस पाई से पाई तक ये लाई करता है। इसका क्या मतलब हुआ? हमने ट्रिग्नोमेट्री में किया था प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। जब हम ट्रिग्नोमेट्री में प्रिंसिपल सॉल्यूशंस करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी सॉल्यूशंस अगर हमें फाइंड करने हैं तो वहां पर प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए जो रेंज होती है, जो हमारे आंसर्स आते हैं, वो 0 से 2 पाई के बीच में आते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस में 0 से लेकर 2 पाई के बीच में आंसर्स थे। इसको मैं ग्राफ की हेल्प से समझा देता हूं। ग्राफ की हेल्प से समझें, एक्सिस में और क्वाड्रेंट में समझते हैं। तो इफ देयर इज अ कॉम्प्लेक्स प्लेन और वन नॉर्मल कार्टेशियन प्लेन, व्हाट आर दीज टू डिफरेंट केस? अलग अलग केस क्या क्या हैं उसको अब हम समझ लेते हैं। ये एक नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री का क्वाड्रेंट सिस्टम है और ये एक सेकंड वाला मैं लेता हूं
कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए वी कॉल इट कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गेंट प्लेन, जो भी हमने डिस्कस किया है। तो यहां डिफरेंस क्या है? प्रिंसिपल ब्रांचेस का ही मेन डिफरेंस है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट्स हैं। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सेम हियर। अब डिफरेंस आता है क्वाड्रेंट्स में एंगल्स को रिप्रेजेंट करने का। यहां 0 से जब हम स्टार्ट करते हैं, 0 से π/2, वी राइट एंगल ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट्स एज थीटा। यहां पर कोई भी एंगल रिप्रेजेंट किया जाता है तो थीटा में लिख दिया जाता है। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस की बात की जा रही है, और प्रिंसिपल सॉल्यूशन अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आता है देन वी राइट π - थीटा। इन थर्ड क्वाड्रेंट वी राइट π + थीटा, and in fourth quadrant we always write 2π - theta. So these are representation of angles when we write principal solutions in trigonometry. But when we go for complex number और जहां हमें argument find करना है, यहाँ 0 से 2π नहीं है, यहाँ -π 2π है। If this is 0, तो -2π is here, -π is here। अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में आते हैं ऐसे, दिस इज -π, और अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में आते हैं ऐसे, दिस विल बी 0 to π। तो π भी यही है, -π भी यही है। -π से मूव करते हुए हम π की तरफ आ रहे हैं। अगर प्रिंसिपल ब्रांच लिख रहे हैं आर्गुमेंट की, देन एंगल्स फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो वही होगा जो थीटा यहाँ है, वही ट्रिग्नोमेट्री का है, वही पोलर फॉर्म में है। सेकेंड क्वाड्रेंट इज ऑल्सो सेम, इट इज π - थीटा। But in third and fourth quadrant, this representation changes. यहाँ representation होगा -θ, और थर्ड क्वाड्रेंट में representation होता है -π + θ। यहाँ -π + θ से representation होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसका जस्ट नेगेटिव यहाँ आ गया और इस एंगल का जस्ट नेगेटिव यहाँ आ गया। इसको माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, -θ बन जाता है। π - θ को मल्टीप्लाई किया तो -π + θ हो जाता है। तो अगर कोई क्वाड्रेंट मैच होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो हम एंगल इस हिसाब से नहीं लिखेंगे, हम एंगल इस हिसाब से लिखेंगे। ये बात हो रही है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। सो यू शुड बी क्लियर विद दिस कि ये जो हम एंगल्स का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ये हमारा चलता है ट्रिग्नोमेट्री में। ये ट्रिग्नोमेट्री का है। ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इस तरीके से इनके एंगल्स को लिखते हैं। और यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स में अगर हम लिख रहे हैं, आर्गुमेंट अगर हम फाइंड कर रहे हैं, तो फिर हम ये वाला सिस्टम फॉलो करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में डिफरेंट है क्वाड्रेंट्स, और वो भी थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट का डिफरेंस है। फर्स्ट एंड टू क्वाड्रेंट आर सेम। तो अगर कोई प्रिंसिपल ब्रांच को सॉल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है एंगल, तो हम थीटा लिखेंगे आर्गुमेंट को। आर्गुमेंट इज π - θ, बट इन थर्ड क्वाड्रेंट आर्गुमेंट बिकम्स -π + θ फॉर्मेट, एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट इट बिकम्स इन फॉर्म ऑफ -θ। तो ये कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात हुई है। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू फाइंड दीज आर्गुमेंट्स और दीज एंगल्स। -π to π ब्रांच रखेंगे, और ये जो बेसिक ब्रांच हमने अभी देखी है, हाउ टू कन्वर्ट z = a + iota b इन r cos θ एंड iota r sin θ, इसकी हेल्प से, ये जो रिलेशन अभी हमने एस्टेब्लिश किया इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, जो राइट एंगल सिस्टम के हेल्प से किया है, इस सिस्टम की हेल्प से हम एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टेक सम एग्जांपल्स टू फाइंड मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट्स। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा एंड वी हैव टू फाइंड मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट एग्जांपल व्हिच आई एम टेकिंग is if complex number is given as 1 plus iota root 3. If any complex number is given in this form and we have to find its modulus and argument, then how to find modulus and argument? Let's see इसका solution क्या होगा। इसके solution के लिए सबसे पहले हम modulus find करते हैं। Modulus which is mod of z. Now modulus of z formula क्या है? Root of a square plus b square. If a complex number is written in this form,
a plus iota b or x plus iota y, then it becomes 1 square plus root 3 square. ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं बिकॉज मॉड z का फॉर्मूला, जिसको हम r से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ये फॉर्मूला है. सो यूजिंग दिस फॉर्मूला, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर becomes 2. So here we are getting modulus of complex number. Modulus बहुत आसान है, easily हमने find कर दिया. Now its second part we have to find argument. Argument के लिए r तो ये आ ही चुका है. We know that polar representation of a complex number is r cos theta plus iota r sin theta. ये पोलर रिप्रेजेंटेशन है, एंगुलर रिप्रेजेंटेशन हम कह सकते हैं इसको. इन दिस एंगुलर रिप्रेजेंटेशन आर कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, वो ये है 1 प्लस आयोटा रूट 3. नाउ वी हैव टू कंपेयर दीज टू. ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है या पोलर फॉर्म कह सकते हैं. इस फॉर्म को हम कंपेयर कर रहे हैं गिवन फॉर्म से. दिस इज standard form or polar form or angular form. Now comparing 1 and 2, in fact comparing real and imaginary parts. हम real part और imaginary part को compare कर रहे हैं. Comparing real and imaginary parts, what do we get? अगर हम real और imaginary part को compare कर रहे हैं तो हमें मिलता है that r cos theta is equals to 1 and r sin theta is equals to root 3. रियल पार्ट को रियल से इक्वेट किया, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से इक्वेट किया. यहाँ आयोटा लिखने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आयोटा लिख भी देंगे तो कैंसिल हो जाएगा. सो वी डोंट नीड टू राइट दिस आयोटा. r cos theta is 1, r sin theta is 1. बट व्हाट इज r? r तो अभी हमने फाइंड किया, इट इज 2. इफ r is 2, अब इस 2 को हम यहाँ पुट कर देते हैं. इफ आई पुट हियर 2, so 2 cos theta becomes 1. Here 2 sin theta becomes root 3. So now we are getting values of cos theta and sin theta. What is value of cos theta? Cos theta is half. In this case, cos theta is 1 by 2 and sin theta is root 3 by 2. अब हमें एंगल फाइंड करना है. व्हाट इज वैल्यू ऑफ दैट एंगल? प्रिंसिपल ब्रांच और प्रिंसिपल आर्गुमेंट ब्रांच इज ऑलरेडी डिस्कस्ड. हमने अभी इसको डिस्कस किया था. हम इसको क्वाड्रेंट के हिसाब से डिसाइड करेंगे. इन फर्स्ट 4 क्वाड्रेंट्स, आउट ऑफ दीज फर्स्ट 4 क्वाड्रेंट, अगर एंगल होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आर्गुमेंट थीटा होगा. सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा होगा. थर्ड क्वाड्रेंट में इसका नेगेटिव माइनस पाई प्लस थीटा और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा. अब हमें पहले क्वाड्रेंट डिसाइड करना है. वी कैन इजीली सी दैट कॉस थीटा इज पॉजिटिव हेयर. ये जो कॉस की वैल्यू है ये पॉजिटिव है और साइन थीटा ये भी पॉजिटिव है. अब कॉस भी पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव, ऐसा किस क्वाड्रेंट में होगा? ये देख सकते हैं. सिंस कॉस थीटा इज पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, और जो साइन थीटा है दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव, मीन्स ग्रेटर देन 0. सो वी कैन से जो आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट ऑफ z, इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं. तो सिंपली हम एंगल को थीटा की फॉर्म में ही लिख देंगे. अब ये थीटा कैसे डिसाइड होगा? कॉस की वैल्यू हाफ कब होती है या साइन की वैल्यू रूट 3 by 2 कब होती है? हमें सिर्फ ये चेक करना है. तो आर्गुमेंट ऑफ z आंसर आ जाएगा. कॉस थीटा की वैल्यू हाफ होती है 60 डिग्री पर. साइन थीटा की वैल्यू रूट 3 by 2 60 डिग्री पर होती है. आप यहां से फाइंड कर दें या यहां से फाइंड कर दें, बात एक ही है. सो आर्गुमेंट ऑफ z इज डायरेक्टली वी कैन राइट 60 डिग्री मीन्स पाई बाय 3. ये आर्गुमेंट आ गया है. आर हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे,
और ये आर्गुमेंट आ गया है π/3। इस तरह से इसका मॉडुलस और आर्गुमेंट आ जाता है। मॉडुलस हम पहले फाइंड कर चुके थे r, और मॉडुलस ऑफ z इज 2 एंड दिस इज आर्गुमेंट। अब इसी क्वेश्चन में यहाँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल था 1 + i√3। नाउ आई एम टेकिंग अ सेकेंड केस। सपोज this complex number was given as, in second example, if complex number is given as -1 + i√3, अगर ये ऐसा दिया होता तो इस केस में मॉडुलस क्या होगा? मॉडुलस ऑफ z विल बी सेम -1², यहाँ आयोटा नहीं लिखा जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे, a² + b² होता है, बस यहाँ i का भी यूज नहीं होगा। दैट इज मॉडुलस नाउ 2 अगेन। मॉडुलस आ चुका है 2। नाउ इट्स एंगुलर फॉर्म और वी कॉल इट पोलर फॉर्म इज r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। ये इसकी एंगुलर फॉर्म या पोलर फॉर्म कह सकते हैं। नाउ कंपेयरिंग इट्स रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल पार्ट को कंपेयर करें तो ये रियल पार्ट है r cos थीटा जो कि -1 के इक्वल है। सिमिलरली इफ वी इक्वेट और कंपेयर इट्स इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करते हैं तो ये √3, आयोटा नहीं लिया, सिर्फ √3 इक्वल्स टू r sin थीटा है। इसको इसके इक्वेट किया, वी विल राइट कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। सो वी आर गेटिंग r cos थीटा is equals to -1 and r sin theta is equals to √3. Now we will check its quadrant. अब हम क्वाड्रेंट चेक करते हैं। क्वाड्रेंट को देखा जाए तो cos थीटा, पहले r की वैल्यू पुट कर देते हैं, r is 2 here, so cos theta is -1/2 and sin theta is √3/2. Here cos theta is negative and sin theta is positive. Now we know quadrant system, हमें एंगल पता है कि अगर cos नेगेटिव है और sin पॉजिटिव है तो वो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? If cos is negative and sin is positive तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट होगा। ऐसा सिर्फ सेकेंड क्वाड्रेंट में ही देखने को मिलेगा जहां cos नेगेटिव है और sin पॉजिटिव है। और क्वाड्रेंट्स में हम एंगल्स को किस तरह से लिख रहे हैं? हियर इट इज थीटा, इट इज पाई माइनस थीटा, माइनस पाई प्लस थीटा एंड माइनस थीटा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा फॉर्म में आएगा। हियर थीटा और आर्गुमेंट ऑफ जेड बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट format will be pi minus theta and we know that cos is half and sin is √3/2 at π/6। वो π/6 पर ही होता है। अगर दोनों पॉजिटिव होते तो π/6 एंगल आता, जैसा कि अभी हमने π/3 एंगल आता। तो क्योंकि 60 डिग्री है, π/3 है, तो cos नेगेटिव है, sin पॉजिटिव है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना होगा, तो आर्गुमेंट होगा पाई माइनस π/3। सो वी कैन से आर्गुमेंट of this complex number is pi minus π/3। ये पाई माइनस थीटा वाले फॉर्मेट से कर रहे हैं इससे, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट था तो पाई माइनस समथिंग, वो समथिंग कहां से मिला? साइन की वैल्यू से या कॉस की वैल्यू से। कॉस की वैल्यू हाफ कब होती है? साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है? 60 डिग्री पर, दैट इज π/3। तो इस तरह से हमारा आर्गुमेंट आ जाता है। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 2π/3। Now in this example, if z is equals to -1 minus iota, well, let us find out its modulus r or mod z, which is root of -1 square plus -1 square. I repeat, we will never write iota here. Iota यहाँ use नहीं होता है. So we are getting modulus as √2. Now in order to find out its argument, let's write its polar form or angular form, which is r cos theta plus iota r sin theta. Now comparing
given form and this angular form, comparing real parts of 1 and 2. If we compare these two, we are getting r cos theta equals to -1 and r sin theta is also equals to -1, but r is √2, modulus is √2. So we are getting cos theta as -1 by √2 and sin theta as -1 by √2. Now we see that cos theta is negative, less than 0 means negative. Sin theta is also less than 0 means negative. Now cos is negative and sin is negative. It happens in third quadrant. ये थर्ड क्वाड्रेंट में हमें मिलता है. In third quadrant, cos and sin both are negative. And in third quadrant, format of writing argument or angle in complex numbers is minus pi plus theta. In fourth quadrant, it is minus theta. First quadrant, it is theta. In second quadrant, it is pi minus theta. Now we have format of third quadrant. We can say that argument of z, given complex number, lies in third quadrant. It belongs to third quadrant. And as it lies in third quadrant, now format of angle will be minus pi plus theta. So we can say argument of z, given complex number, is minus pi plus. अब ये थीटा क्या है? थीटा को देखें. Cos is 1 by √2, sin is 1 by √2 at 45 degree, and 45 degree is pi by 4. So simplifying this, we are getting minus 3 pi by 4 as answer. Finally we can say, so modulus is √2. Modulus of z, modulus of complex number z, which is r, is √2, and argument of z is minus 3 pi by 4. This is answer. In next example, suppose complex number is given as this 1 minus iota. Here modulus of z or r is again √2. And now I am writing in short form. मैं थोड़ा जल्दी लिखूंगा इसको शॉर्टकट में. If we compare this with r cos theta plus iota r sin theta, so r cos theta is 1, r sin theta is -1. In this case, cos is positive and sin is negative. Now since cos theta is positive, cos theta, r की वैल्यू भी पुट कर देते हैं. We are getting 1 by √2 and we are getting sin theta as -1 by √2. Now this is positive, sin theta is negative. So we can say argument of z would lie in fourth quadrant. And in fourth quadrant, how do we represent angles? ये मैं हर बार ड्रॉ कर रहा हूं, बट यू नीड नॉट टू राइट दीज एंगल्स एवरी टाइम. ये सिर्फ आपको समझाने के लिए क्वाड्रेंट्स यहाँ शो किए जा रहे हैं. यू नीड नॉट राइट दीज कॉम्प्लेक्स प्लेन एंगल्स एवरी टाइम इन एवरी क्वेश्चन. सो दिस इज थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई माइनस थीटा इन सेकेंड क्वाड्रेंट, माइनस पाई प्लस थीटा इन थर्ड क्वाड्रेंट, and minus theta in fourth quadrant. So according to fourth quadrant, because here argument of z lies in fourth quadrant, our argument becomes argument of z is minus of angle. Minus of angle is pi by 4. दोनों की वैल्यू देखें, 1/√2 1/√2 कब होता है? pi by 4. आप किसी एक से भी चेक कर सकते हैं, साइन से चेक करें या कॉस से चेक करें. ये एक एग्जाम्पल हो गया है. अब एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं. सपोज इट हैज ओनली वन पार्ट, लाइक ओनली इमेजिनरी पार्ट और ओनली रियल पार्ट. लेट्स टेक वन एग्जाम्पल. इफ z इज जस्ट 3, अगर सिर्फ 3 है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 + 0 आयोटा. अब इसका मॉडुलस फाइंड किया जाए. If you try to find its modulus,
दैट इज ऑल्सो 3। अब इसका आर्गुमेंट फाइंड करते हैं। r cos थीटा is 3 here and r sin थीटा is 0 here। r की वैल्यू 3 पुट की जाए, सो cos थीटा is 1 here and sin थीटा is 0 here। r की वैल्यू 3 पुट कर दी गई है और सिंप्लीफाई किया गया। नाउ बोथ आर पॉजिटिव, क्योंकि cos भी पॉजिटिव है, sin भी पॉजिटिव है, सो इट विल वर्क अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से चलेंगे एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट वी डायरेक्टली राइट एंगल एज थीटा, सीधा थीटा लिख दिया जाता है। सो थीटा के हिसाब से अब देखते हैं पॉजिटिव एंगल आना चाहिए। कॉस की वैल्यू 1 कब होती है और साइन की वैल्यू 0 कब होती है? सो वी कैन डायरेक्टली से दैट आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां साइन 0 है और कॉस 1 है, वो एंगल है 0। तो 0 इसका आंसर आ जाता है। आर्गुमेंट इज 0 एंड मॉडुलस इज 3। तो ये क्वेश्चंस हो गए हैं बेस्ड ऑन कंसेप्ट्स ऑफ मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। In question number 13 of miscellaneous exercise, this complex number is given and we have to find its modulus and argument. अब मॉडुलस ऑफ आर्गुमेंट, मॉडुलस और आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए हमें इस फॉर्म में दिया गया है क्वेश्चन, बट वी नीड टू कन्वर्ट दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए वी हैव टू रैशनलाइज इट। हम इसको रैशनलाइज करते हैं एंड हाउ टू रैशनलाइज, वी विल मल्टीप्लाई बाय इट्स कॉन्जुगेट। 1 + 3 आयोटा और 1 + 3 आयोटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया गया एंड व्हाट वी आर गेटिंग। अब देखते हैं न्यूमरेटर में क्या आ रहा है। इफ यू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर 1 × 1 इज 1 प्लस 3 आयोटा देन 2 आयोटा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 5 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर इज a + b, a - b means a square minus b square. Now in numerator we can see we are getting 6 iota square means -1, ये -1 है तो -6 हो गया। -6 + 1 is -5, -5 + 5 iota divided by this is 1 and this is 3 square means 9, तो ये आ जाता है, क्योंकि ये 3 है, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर भी है तो -1 होगा, तो प्लस का 9 हो जाता है। 9 + 1 इट इज 10। सो कॉम्प्लेक्स नंबर विच वी आर गेटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज -1/2 एंड +1/2 आयोटा। ये एक फॉर्म आ गई है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में दिया गया था, मॉडुलस और आर्गुमेंट फाइंड करना था। इसको हम डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फाइंड किया जाए। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए। अब हम इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे, देन उसका आर्गुमेंट। मॉडुलस इज -1/2 होल स्क्वायर प्लस 1/2 होल स्क्वायर विच इज 1/4 प्लस 1/4, हाफ means 1/√2. We are getting this form. Now comparing this with real and imaginary part, स्टैंडर्ड फॉर्म जो एंगुलर फॉर्म है वो आयोटा r cos थीटा और आयोटा r sin थीटा है। ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, वो लिखना चाहिए, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं। ये रियल पार्ट है, r cos थीटा is -½ and r sin theta is +½। अब ये √2 पुट कर दिया जाए, अगर वी आर पुटिंग वैल्यू ऑफ r, मॉडुलस जो था ये r भी था, दिस इज r। सो 1/√2 cos theta is -1/2 and 1/√2 sin theta is 1/2। इसको सिंप्लीफाई किया जाए, √2 को आप यहां ले आइए, तो वी आर गेटिंग cos थीटा एज -1/√2 एंड वी आर गेटिंग sin थीटा एज 1/√2। देखिए 2 जो है वो √2 का स्क्वायर होता है, आप डायरेक्ट √2 से √2 भी कैंसिल कर सकते हैं। ये हमारे पास फॉर्म आ गई है।
नाउ लेट्स सी इट्स साइन। कॉस थीटा जो कि नेगेटिव है यहाँ पर, और साइन थीटा पॉजिटिव है। कॉस थीटा नेगेटिव, साइन थीटा पॉजिटिव कब होता है? आर्गुमेंट इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सो आर्गुमेंट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंगल इज रिप्रेजेंटेड इन पाई माइनस थीटा फॉर्म। सो वी कैन से आर्गुमेंट ऑफ z इज पाई माइनस थीटा, और वो एंगल क्या है? 1/√2। 1/√2 वैल्यू कब होती है? 45 डिग्री पर, π/4। सो दिस वे वी आर गेटिंग आर्गुमेंट एज 3π/4। नाउ वी कैन से जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया गया था 1 + 2 आयोटा और 1 - 3 आयोटा, हमने इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। इसका मॉड्यूलस और आर्गुमेंट पूछा गया था। मॉड्यूलस विच इज r और mod z is 1/√2 and its argument is which is in second quadrant, जिसको हम arg आर्गुमेंट ऑफ z से रिप्रेजेंट करते हैं, इज 3π/4। ये मॉडुलस और आर्गुमेंट आ गया है। सो दिस वे वी हैव डन ऑल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मॉडुलस एंड आर्गुमेंट, एंड नाउ यू आर सपोज टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 5.2। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के बाद जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो बेस्ड हैं पोलर फॉर्म पर। बट आप पोलर फॉर्म तो सिलेबस में नहीं है, बट आप इन सभी क्वेश्चंस का मॉड्यूलस ऑफ आर्गुमेंट जरूर फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक ये सभी आपको करने हैं नोटबुक में, और इन सभी में आपको फाइंड करना है मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट। ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, और सिमिलर क्वेश्चन आपको मिसलेनियस में भी मिल जाते हैं, वहां से भी आप कर सकते हैं। जो भी पोलर फॉर्म का क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चंस आप करेंगे, बट विद मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट पार्ट्स ओनली। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।